बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 4 पॉसिबल ऑप्शंस आर गिवन, फिल इन द सर्कल ऑफ द मोस्ट सूटेबल एंड करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट। नंबर 1, forward reaction stops, the reverse reaction stops, both forward and reverse reactions stop, and both forward and reverse reactions continue at the same rate. हमारा ऑप्शन डी is the right option. दूसरा क्वेश्चन है when a mixture of hydrogen and iodine is sealed in a flask and temperature is kept at 25 degrees C, the following equilibrium is established. Hydrogen plus iodine gives hydrogen iodide. Which substance or substances will be present in the equilibrium mixture? Option A, hydrogen and iodine. Option B, hydrogen iodide only. Option C, hydrogen only. And option D, hydrogen iodine and hydrogen iodide. So the correct option is option D, because all the three will be present at the time of equilibrium. Next question, what are the units for the following reaction? Nitrogen 1 moles, oxygen 1 moles. It gives 2 moles of nitric oxide. You know that if the number of moles on both sides is equal, then there will be no unit. So option A, option B, option C, option D. Option D has no units, therefore this is the correct option. Next question, which of the following reactions will not have any units of Kc? अभी जो एग्जाम्पल गुजरा है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो ऑन बोथ साइड्स देयर विल बी नो यूनिट ऑफ Kc. पहला है इट हैज़ नो यूनिट्स, दूसरा है इट हैज़ आल्सो नो यूनिट्स, C is also have no units, and the D option is all of these. So the correct option is that is option D. गलती से यहाँ पर जो फेल हुआ है वो C फेल हुआ है, but the correct option is option D. So D is the correct option. Number 5, concentrations of reactants in products remain unchanged if concentration of any reactant or product is not changed, temperature of the reaction is not changed, pressure or volume of the system is not changed, all of the above are observed. So the option is D, because all the three conditions are observed at the time of equilibrium. If these are observed, then there will be no change in concentration of reactants or products. Number 6, which of the following doesn't happen when a system is at equilibrium state? Number 1, forward and reverse reaction stop. Number B, forward and reverse reactions rates become equal. Concentration of reactants in products stop changing. And option D, reaction continues to occur in both the directions. So our first option is the correct option, because forward and reverse reactions don't stop. Number 7, for which reaction the units of Kc is moles per dm cube. Students, जिस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हों और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शंस कम हो, तो उसका यूनिट जो है वो मोल्स पर डीम क्यूब या मोल स्क्वायर dm-6 वगैरह होगा. सो यहाँ पर है ऑप्शन ए में रिएक्शंस के 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट का 1 मोल है. ऑप्शन बी में रिएक्शंस के 4 मोल हैं और प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं. ऑप्शन सी में रिएक्टेंट का 1 मोल और प्रोडक्ट्स का 2 मोल्स हैं. इसी तरह ऑप्शन डी में रिएक्टेंट्स के 2 मोल और प्रोडक्ट्स की भी 2 मोल्स हैं. हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है, जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं. In an irreversible reaction, equilibrium is established quickly, established slowly, never established, and established when reaction stops. Our correct option is option C, because in irreversible reaction the equilibrium doesn't establish, never establishes. Number 9, active mass means total mass of the reactants, total mass of products,
total mass of reactants in products, amount of a substance in moles per dm cube in a dilute solution, and this is the correct option. Number 10, for a reversible reaction, the Kc is given as Kc is equal to C whole square divided by A multiplied by B. Which substance is present in the given reaction? Which substance is product in the given reaction? इसमें product क्या है? तो आपको पता है कि products हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं. So C will be the right option. Option A में है given A, option B में है given B, और ऑप्शन सी में है both A and B, and ऑप्शन D में है C. So C is the product in this reaction, and the correct option is option D. Next question है question number 2. Give short answers. Differentiate between forward and reverse reaction. इसके लिए आपने एक टेबल बनाना होगा. डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस के लिए ये टेबल बनाना है. इसमें आपने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के फीचर्स लिखने हैं. मसलन पहला है कि इट इज़ रिटन फ्राम लेफ़्ट टू राइट, और इट इज़ रिटन फ्राम राइट टू लेफ़्ट. रिवर्स रिएक्शन इज़ रिटन फ्राम राइट टू लेफ़्ट. नंबर 2, रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, और यहाँ रिवर्स रिएक्शन में यह है कि प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स. Number 3, its rate is fastest at the beginning and gradually slows down. और रिवर्स रिएक्शन का ये है कि its rate is 0 at the beginning and gradually speeds up. स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 1 और 2 में एक दो लफ्ज़ मिसिंग है. प्लीज़ आप इसको राइट कीजिए. मैं एक दफ़ा फिर पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग इसको राइट कीजिए. यहाँ लिखना चाहिए फॉरवर्ड रिएक्शन के नीचे इट इज़ रिटन फ्राम लेफ़्ट टू राइट. राइट जो वर्ड है यहाँ पर मिसिंग है. ये इसके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मिसिंग है, तो आप लिख लीजिए. इसी तरह से यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स का जो लफ्ज़ है इसमें मिसिंग है, आप लिख लीजिएगा. इसी तरह पॉइंट नंबर 3 जो है ना ये कंप्लीट लिखा हुआ है, इसी तरह आपने इसको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द केमिकल इक्विलिब्रियम. आंसर केमिकल इक्विलिब्रियम आपने इसी टाइटल के साथ लिखना है. A state of a chemical reaction in which the forward and reverse reactions take place with the same rate is called chemical equilibrium. At chemical equilibrium, the concentration of reactants in products remains constant. Similarly, the temperature, volume, and the number of moles of substances remain constant. Example, PCl5, when it is decomposed, it gives PCl3 and Cl2. This is a kind of reversible reaction where the equilibrium has been established. There will be the presence of PCl5, PCl3 and Cl2, and their concentrations will remain same throughout. Next question is write the law of mass action. The answer is law of mass action. It can be defined as the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass, and the rate at which a reaction proceeds is directly proportional to the product of active masses of the reactants. For example, active mass means the mass of a substance in mole per dm cube in a dilute solution. For example, PCl5 gives PCl3 and Cl2. For this, the rate is equal to K multiplied by PCl5. Yani the rate is directly proportional to the concentration of PCl5, that is our reactant. Similarly, for the following reaction, like PCl3 plus Cl2 gives PCl5, इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स हैं, तो लिहाजा rate will be equal to K multiplied by PCl3 multiplied by Cl2. यानी rate जो है it will depend upon the product of PCl3 reactant and and Cl2 reactant. Product का मतलब है जैसे 2 multiplied by 2 is equal to 4. 2 by 2 is equal to 4.
जो मैथमेटिकल प्रोडक्ट है या मल्टीप्लिकेशन है, इससे ये मुराद है। Next question, write down the conditions of equilibrium. So there are three conditions of equilibrium. Number one, concentration of the reactants in products remains unchanged. Number two, temperature of the system remains constant. Number three, pressure or the volume of the system remain constant. So these are the three conditions of equilibrium. It means that if these are followed or these are maintained, then there will be equilibrium, otherwise it will disturb. Number 5, what is the importance of equilibrium constant for a chemical reaction? The answer is importance of equilibrium constant. Number 1, it can be used to determine the concentration of reactants in products knowing their initial concentrations. It means that अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशंस का पता हो तो आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का पता चला सकते हो कि अब इक्विलिब्रियम टाइम पर रिएक्टेंट्स कितने हैं और प्रोडक्ट्स कितने हैं। दूसरा पॉइंट आपने लिखना है, इट कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आप ये बता सकते हैं कि क्या ये फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। नंबर 3, इट कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है कि क्या ये मतलब है कि 95% आगे जाएगा या सिर्फ 10-15% आगे जाएगा, इसकी लिमिट क्या होगी ये आप बता सकते हैं। नंबर 4, इट कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंडीशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑन द इक्विलिब्रियम, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, इसका क्या इफेक्ट होगा, ये आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इससे आप वो कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो और प्रेडिक्ट कर सकते हो। Question number 3, following reaction occurs during lightning of storms. 3 oxygens give 2 ozone molecules. For this reaction, write equilibrium constant expression, determine the units of equilibrium constant, and write forward and reverse reactions. Answer, equilibrium constant expression. हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इसके लिए लिख सकते हैं 3 moles of oxygen gives 2 moles of ozone and the equilibrium constant will be O3 power 2 divided by O2 power 3। आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है 3, it will become its power। इसी तरह से ओजोन का जो कोफिशिएंट है 2O3 लिखा गया है, so it will become the square or it will become the power of concentration of O3. So the Kc is equal to O3 square divided by O2 cube. Units of equilibrium constant, आपने लिखना है पहले Kc is equal to ओजोन स्क्वायर डिवाइड बाय ऑक्सीजन का क्यूब। आपने लिखना है मोल पर डीम क्यूब का स्क्वायर, मोल्स पर डीम क्यूब का क्यूब। आपने 2 और 3 को कैंसिल करना है तो ऊपर के दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नीचे 3 में से 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक रह जाएगा। लिहाजा अभी हम लिखेंगे 1 ओवर मोल डीएम क्यूब, और अगर आपने इसको डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाना है तो मोल का जो सिंबल, मोल का जो पावर है वो -1 हो जाएगा और डीम माइनस क्यूब जो है इट विल बिकम डीएम क्यूब and the Kc unit will be dm cube per mole. Next, forward and reverse reactions, आपने लिखना है forward reaction। forward reaction इसी तरह से होगा जिस तरह की ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन आप लिखेंगे उसमें आप O3 से O2 बनाएंगे, यानी प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट बनाएंगे। So these are written like this. Next question, coal reacts with hot steam to form carbon monoxide and hydrogen. These substances react further in the presence of catalysts to give methane and water vapors. The equation is CO gas reacts with 3 moles of hydrogen gas. It produces CH4 methane gas and H2O yani steam. Write forward and reverse reactions for it. Derive equilibrium constant Kc expression for it. And number 3, determine units of Kc. The answer is forward and reverse reactions can be written as forward reaction same to same लिखा जाएगा जिस तरह की ऊपर गिवन है, लेकिन इसमें एरो साइन जो है वो लगाया जाएगा।
इसमें डबल एरो नहीं लगाएंगे। रिवर्स रिएक्शन, इसको उलट लिखा जाएगा। CH4 वाटर को हम प्रोडक्ट की जगह, रिएक्शन की जगह पर लिखेंगे, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन्स हैं, these are written in place of products. Derive the chemical Kc expression. अब इसमें क्या है? derivation of Kc expression. The balanced chemical equation is given as, सबसे पहले आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू हाइड्रोजन क्यूब। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू KF इंटू CO इंटू H2 पावर 3, यानी KF जो है इसमें रेट कांस्टेंट कहलाता है, या रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कहलाता है। Similarly, rate of reverse reaction is proportional to CH4 into H2O power 3. यहाँ पर एक दफ़ा फिर जो है, sorry, this will be simply, we can write the rate of reverse reaction is proportional to CH4 into H2O. The rate of reverse reaction will be equal to Kr into CH4 into H2O. This will become question number 2. Equation number 2. At equilibrium, the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. Put the values from equation 1 in 2. Kf into CO is equal to H2 power 3, and Kr multiplied by CH4 concentration into water concentration. Now this can be rearranged. इसको रीअरेंज करेंगे। KF डिवाइडेड बाई KR, दोनों कांस्टेंट इकट्ठे किए जाएंगे। इसके बाद हम लिख सकते हैं CH4 H2O divided by CO H2 power 3, and then we can write Kc instead of KF divided by KR. KF और KR दोनों कांस्टेंट्स हैं, इसको एक कांस्टेंट से हम रिप्लेस कर सकते हैं, and the Kc will become equal to CH4 H2O CO H2 power 3. This will be the final Kc expression. इसके बाद यूनिट्स ऑफ Kc, तो हम लिख सकते हैं Kc is equal to CH4 into H2O divided by कार्बन मोनोऑक्साइड into हाइड्रोजन पावर 3. हम इसमें मोल डीम क्यूब हर एक का यूनिट डालेंगे। तो ऊपर वाले को हम आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल के मुताबिक हम लिख सकते हैं मोल पर डीम क्यूब स्क्वायर, और नीचे वालों के पावर्स जब हम ऐड करते हैं तो हम लिख सकते हैं मोल पर डीम क्यूब पावर 4। अब हम जो है 2 और 4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 4, और अगर हम इसको माइनस करते हैं तो -2 आंसर आ जाता है। इसलिए हम लिखेंगे Kc यूनिट इज इक्वल टू मोल पर डीम क्यूब पावर -2। इसी तरह से अगर हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो मोल का पावर हो जाएगा -2, और dm क्यूब जो है यानी dm-3 जो है it will become +6. So the unit will be like this will be mole -2 dm +6. Question number 5. Write equilibrium expression for the following reactions. इन तमाम रिएक्शंस के लिए हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस लिखेंगे। ये 4 रिएक्शंस गिवन है और आपने हर रिएक्शन का केस एक्सप्रेशन लिखना है। तो पहले के लिए हम फॉर एग्जांपल लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, H2O gives H2 and half moles of O2। तो हम लिख सकते हैं Kc इज इक्वल टू हाइड्रोजन इंटू ऑक्सीजन का पावर है 1/2 पावर, और H2O का पावर 1 है। सो दिस इज द Kc एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम लिख सकते हैं Kc इज इक्वल टू CH3OH डिवाइडेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू हाइड्रोजन का पावर 2। इस तरह नंबर 3 में हम लिख सकते हैं COCl2 gives CO plus Cl2। इसका Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे CO into Cl2 divided by carbonyl chloride COCl2। Number 4 HCl plus O2 gives 2Cl2 plus 2H2O,
और इसका केसी एक्सप्रेशन लिखा जाएगा क्लोरीन का पावर 2, वाटर का पावर 2, HCl का पावर 4 और ऑक्सीजन का पावर 1. सो दीज आर द केस एक्सप्रेशंस. Question number 6. Determine the units of equilibrium constant for the following reactions. ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं और इन तमाम के हमने यूनिट्स निकालने हैं. तो चलें हम पहला निकालते हैं. ये हमारा पहला रिएक्शन है. सबसे पहले आपने केसी एक्सप्रेशन लिखना है जिस तरह कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया है. इसके बाद आपने इसके यूनिट्स लगाने हैं और यूनिट के ऊपर आपने पावर्स लगाने हैं जो इनकी रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के पावर्स हैं. तो हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट के साथ कैंसिल कर रहे हैं. बाकी जो बचता है वो है मोल पर डीम क्यूब. सो दिस इज़ द केसी यूनिट ऑफ दिस रिएक्शन. नेक्स्ट है रिएक्शन हमारा है हाइड्रोजन आयोडीन गिव्स 2HI. इसका हम यूनिट ऑफ केसी कैसे निकालते हैं. सबसे पहले आपने लिखना है इसका केसी एक्सप्रेशन. उसके बाद आपने इसमें मोल पर डीम क्यूब की यूनिट्स लगाने हैं. ये लगाने के बाद जो नीचे वाले हैं डिनोमिनेटर, इनकी पावर्स को जब हम ऐड करेंगे तो 2 निकल आएगा. लिहाजा अब हमारा जो निकल रहा है वो इस तरह निकल रहा है केसी इज इक्वल टू मोल पर डीम क्यूब स्क्वायर एंड डिवाइड बाय मोल पर डीम क्यूब स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो लिहाजा देयर विल बी नो यूनिट ऑफ दिस रिएक्शन. इसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 3. यूनिट ऑफ केसी लिखने के लिए आपने इसका केसी एक्सप्रेशन लिखना है. उसके बाद आपने इसके अंदर मोल पर डीम क्यूब के यूनिट्स लगाने हैं. अब आपने 2 को 2 के साथ कैंसिल करना है. स्क्वायर को स्क्वायर के साथ कैंसिल करेंगे तो केसी यूनिट हो जाएगा 1 मोल पर डीम क्यूब और उसके बाद हो जाएगा मोल -1 और DM +3. ये इसका फाइनल यूनिट होगा जिसको आप DM क्यूब पर मोल की तरह भी लिख सकते हो. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन नंबर 4. आपने इसका केसी लिखना है. उसके बाद आपने यूनिट्स लगाने हैं. 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे. ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो गए. अब हमारे पास रहता है 1 मोल पर डीम क्यूब. अब ये हो जाएगा DM क्यूब पर मोल या मोल -1 और DM +3. Question 7. State the ways that equilibrium can be recognized. The following ways can be used to recognize the state of chemical equilibrium. पहला है physical ways, that is called spectroscopy. Equilibrium can be recognized by using the physical property like absorption of light by chemical substances. For example, nitrogen dioxide is a brown gas and absorbs light. When it is prepared by the following reaction, its concentration can be found by measuring the absorption of light in a spectroscope. The reaction is N2 plus 2O2 gives 2NO2. अब इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है और ये लाइट एब्जॉर्ब कर रही है. तो पहले स्पेक्ट्रोस्कोप आपको बताएगा कि फुल लाइट पास हो रही है, लेकिन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ती जा रही होगी तो उसके साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी ज़्यादा होगी. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना या स्पेक्ट्रोस्कोप आपको बताएगा कि अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ती जा रही है. जिस वक्त ये एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाए उस टाइम पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है. दूसरा मेथड क्या है? केमिकल वे, जिसको हम कहते हैं टाइट्रेशन. इफ़ अ रिएक्शन इन्वॉल्व्स एन एसिड और बेस, its concentration can be measured by titration. An acid is titrated with a base and vice versa. For the concentration of HCl can be found by titrating with sodium hydroxide. Hydrogen plus chlorine gives HCl. अगर आपने ये जानना हो कि हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl गैस कितनी मिकदार में बन रही है तो आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेट करते चले जाएंगे. जिस वक्त इसके कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे
तो आप समझ जाएं कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। इसका हम एक ग्राफ बनाया करते हैं, और ग्राफ जब एक्स एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाए तो हम समझ जाते हैं कि अब इस टाइम पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन से मुराद है कि आपने इसकी फॉरवर्ड और जो रिवर्स रिएक्शन है इसके आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस, देयर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन एज अंडर। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा है रिवर्स रिएक्शन। इट इज़ रिटन फ्राम लेफ्ट टू राइट, अगेन जो है राइट ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और अगेन इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। तो आपने पिछले वाला जो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर था वो आपने लिखना है, वही चीज़ आपने लिखनी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं थिंक टैंक। ब्रोमीन क्लोराइड डिकम्पोज टू फॉर्म क्लोरीन इन ब्रोमीन। For this reaction, write the chemical equation, Kc expression and units of Kc. The answer is chemical equation 2 bromine chloride. This is BrCl. यहाँ पर Be लिखा हुआ है शायद, लेकिन ये है BrCl। इससे बनता है Br2 and Cl2। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपने करेक्ट करना है 2BeCl की जगह आपने लिखना है 2BrCl। Kc एक्सप्रेशन आपने लिखना है Kc is equal to Br2 into Cl2 divided by BrCl power 2। इसके बाद इसके यूनिट्स निकालने हैं, तो Kc एक्सप्रेशन लिखें, उसके बाद इसमें मोल पर डीम क्यूब की यूनिट्स डाल दें, ऊपर वाले सम अप कर दें तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ कैंसिल करें तो देयर विल बी नो यूनिट ऑफ दिस रिएक्शन। आपने इसी तरह से लिखना है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, थिंक टैंक। Kc expression for a reaction is given as Kc is equal to NO2 power 2 divided by N2O4. Choose the reactant and product to derive the units of Kc for this reaction. Answer: the reactant of this reaction is N2O4 and the product is NO2. The chemical reaction can be written as N2O4 gives 2NO2. This is the chemical reaction of this Kc expression. Kc units can be derived as, आपने लिखना है Kc, इसके बाद आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है यूनिट्स की। तो आप देख सकते हैं कि मोल पर डीम क्यूब का स्क्वायर डिवाइड बाय मोल पर डीम क्यूब। अब स्क्वायर के साथ नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक रह जाएगा, एंड दैट विल बी मोल पर डीम क्यूब, एंड दिस विल बी द Kc यूनिट ऑफ दिस इक्वेशन। Question number 3, for which of the following reactions are both reactants and products likely to be present when the reaction appears to be complete? Justify। यानी इनमें से किस रिएक्शन की रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों मौजूद होंगे एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इसको जस्टिफाई करें। पहला है C plus O2 gives CO2, दूसरा है 2HF in a reversible reaction gives hydrogen and fluorine। तो the answer is for reaction 2 are both reactants in products likely to be present when the reaction appears to be complete। ये वो रिएक्शन है कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मौजूद होंगे। रीजन: दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम establishes after some time। At equilibrium the reactants as well as the products will be present। क्वेश्चन नंबर 4, कोबाल्ट क्लोराइड फॉर्म्स पिंक क्रिस्टल्स और इसका फार्मूला होता है COCl3.6H2O। when they are heated water is evolved and they turn blue, जिसका फार्मूला होता है COCl3। can you use cobalt chloride as a test for water? The answer: yes, it can be used to test the presence of water. It is used to find the moisture and humidity in the air.
On humid days, its color turns pink. तो कोबाल्ट क्लोराइड जो है, इसके साथ जब वाटर के मालिक्यूल्स अटैच होते हैं तो ये पिंक होता है, और कोबाल्ट क्लोराइड जब उनमें से वाटर हटा दिया जाए तो इसका कलर ब्लू होता है। तो लिहाजा ऑन ह्यूमिड डेज, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ये वाटर एब्जॉर्ब करके पिंक बन जाता है, और जिस वक्त ह्यूमिडिटी कम होती है तो ये ब्लू रहता है। सो दिस वाज द exercise of chapter number 9, equilibrium. Thank you for watching. Subscribe my channel Kim Soul by Shinwari. अगर आपको कोई भी इस में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।